35 سال کی عمر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میرے پتی آرمی میں کام کرتے تھے اور 1 سال پہلے ہی ان کی موت ہو گئی اور ہمارا کوئی بھی بچہ نہیں تھا، تو میں بالکل ہی اکیلی ایک چھوٹے شہر میں رہتی تھی۔ صبح کے وقت میں بچوں کو پڑھانے جاتی، پر کام سے واپس آنے کے بعد سمے کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا۔ میں نے سوچا ابھی میری عمر ہی کیا ہے، تو میں نے جم جوائن کر لیا۔ اسکول کے بعد میں روز جم جاتی اور 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتی تھی، جس سے میرا تھوڑا ٹائم بھی کٹ جاتا تھا۔ جم میں میرا ٹائم پر ایک مرد آتا تھا جو مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ کوئی تو مرد ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اب تو مجھے دیکھنے والا، میرا تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ جب میں کوئی ایکسرسائز غلطی کرتی تو وہ میرے پاس آ کر مجھے صحیح طریقے سے کرنا سکھاتا اور کبھی کبھی اسی بہانے ہاتھ بھی لگا دیتا۔ اس کے ہاتھ غلطی سے بھی لگ جائے تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، اور اس وقت احساس ہوتا تھا کہ میں کتنی اکیلی ہوں اور اپنی سرکاری نوکری کے چکر میں کتنی تنہا رہ گئی ہوں۔ میرا نام نینا ہے۔ 24 سال کی عمر میں مجھے سرکاری ٹیچر کی نوکری مل گئی تھی۔ میرے لیے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ سرکاری پریکشا میں پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری پوسٹنگ گھر سے دور ایک گاؤں میں ہو گئی اور میرا کام دھیرے دھیرے من بھی لگ گیا تھا۔ بس رات کے وقت مجھے بہت اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ سال بیتتا گیا اور میری ماں پاپا کو میری شادی کی چنتا ستانے لگی، پر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ نوکری تو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ تبھی اسی گاؤں کے ایک گھر سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا آرمی میں کام کرتا تھا اور سال کے 3 مہینے اپنے گھر پر رہتا تھا اور باقی کے سمے اپنی ڈیوٹی پر۔ مجھے رشتہ پسند آ گیا تو میں نے لڑکے سے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ اس وقت میری عمر 26 سال کی تھی۔ سسرال میں میرے پتی کے علاوہ میری ساس، سسر اور میرا ایک کنوارا دیور تھا۔ میرا دیور اپنے پاپا کے ساتھ کھیت سنبھالتا کرتا تھا۔ میرے پتی اپنے کام میں ہمیں پیسہ بھیجا کرتے تھے اور سال کے 3 مہینے وہ گھر پر آتے تھے اور گھر پر ہی رہتے تھے۔ شادی کے بعد تو 15 دن تک وہ میرے ساتھ ہی رہے، لیکن پھر انہیں ڈیوٹی جوائن کرنا تھا تو وہ چلے گئے۔ مجھے ان کی کمی خلنے لگی تھی اور رات کو اپنے پتی کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ بس فون پر ہی میری ان سے بات ہو پاتی تھی۔ میرا دیور کبھی کبھی میرے کمرے میں آ جاتا اور میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنا دیور پسند آنے لگا، کیونکہ وہ میرے پتی سے زیادہ مجھے سمے دیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے ہنساتا رہتا تھا۔ میری ساس کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ دیور میرے کمرے میں وقت گزارے۔ اسی وجہ سے وہ مجھے طعنے مارتی تھی، پر میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ آخر میں بھی تو ایک عورت ہوں۔ کب تک ایسی جیوں؟ اور دیور کے ساتھ میرا کوئی غلط سمبند نہیں تھا، بس دوست مانتی ہوں میں اسے۔ جب میرے پتی 6 مہینے بعد گھر آئے تو میری ساس نے میرے پتی کے کان بھر دیے۔ نہ جانے انہیں کیا الٹا سیدھا بتا دیا کہ میرے پتی مجھ پر برس پڑے۔ میں نے کہا آپ چلے جاتے ہو، اسی لیے میں وجے سے بات کر لیتی ہوں، پر ہمارے بیچ میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے۔ لیکن میرے پتی نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر دیور کی شادی کروا دی۔ میرا دیور اب اپنی پتنی کے ساتھ وقت گزارنے لگا تو میں پھر سے اکیلی ہو گئی۔ پھر میں کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، جس سے میرا سمے کٹ جایا کرتا تھا، اور جتنا بھی سمے ملتا میں اپنے پتی سے فون پر بات کیا کرتی تھی۔ شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، پر میں گربھوتی نہیں ہو پائی تھی، اور 8 سالوں کے دوران میں نے اتنے طعنے سنے کہ میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ میری دیورانی کے 2 بچے ہو گئے تھے اور میرا گود ابھی بھی سونا تھا۔ میری ساس مجھے باتیں سنانے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ کہتی پڑھی لکھی بہو ہو، اتنی دیر سے شادی کیا اور بچہ لینا بھی ضروری نہیں سمجھتی، تاکہ کام چھوڑ کر گھر پر نہ بیٹھنا پڑ جائے۔ میری دیورانی بھی مجھ سے بہت جلتی تھی۔ ایک دن آرمی والے گھر پر آئے، ساتھ میں میرے پتی کی لاش لائے تھے۔ میرے پتی کی موت کے غم سے باہر آنے سے پہلے ہی میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ میری دیورانی تو مجھ سے پہلے سے ہی جلتی تھی۔
क्योंकि देवर के साथ मैं शादी से पहले बहुत घुस मिल गई थी। देवरानी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ये विधवा औरत घर पर रहेगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बाकी का कसर मेरी सास ने पूरा कर दिया। हालांकि मेरे ससुर और मेरे देवर ने मेरा साथ तो दिया था, पर उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। उसके बाद मैंने उस गांव से ट्रांसफर लेकर एक छोटे शहर में आ गई थी और 1 साल से अकेली जी रही हूँ। यही वजह है कि मैंने जिम ज्वाइन किया, ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। इसी बीच मेरी स्कूल की छुट्टियां आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता का इसी बीच देहांत हो गया था, तो अब मेरा भाई ही बस रह गया था, जो कि मेरे से 4 साल बड़ा है। जब मैं ट्रेन पकड़ के जाने लगी तो काफी लंबा सफर था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर एक 40 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे बार बार घूर रहा था। मेरे पानी की बोतल खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा अगले स्टेशन पर उतरकर भर लूंगी। पर जैसे ही अगला स्टेशन पहुंचा तो वह आदमी मुझसे मेरा बोतल छीन कर बोला, मैं भर देता हूँ, कहकर जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं ये आदमी चोर तो नहीं है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले वह मेरे पास आ गया और मुझे पानी का बोतल थमा दिया। साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों से कुछ खाना मेरा मन नहीं कर रहा था, पर वो भी खाने लगा तो मुझे हिम्मत आई और मैं भी उसे खाने लगी। बहुत तेज भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का खत्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाली सीट पर सोना था, पर उस आदमी ने कहा, मैडम मेरी नीचे वाली सीट है तो आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरे जीने का भी कोई सहारा होता, तो मैं अकेली इतनी घबरा कर ट्रेन की यात्रा न करके मैं इसके मजे लेती। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव भी मेरे लिए सही नहीं था। मेरी भाभी की बातें से मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने से वो खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और एक बांझ भी। वह अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारत करते रहते हैं। एक दिन भैया भाभी ने तो सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो, माँ और बाप पापा तो रह नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए ही उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी ना। और मैं अपने काम तो खुद ही करती हूँ और उनके पास से भी नहीं लेती, उनके पैसे से खाती भी नहीं हूँ। फिर पता नहीं क्यों मुझे ये सब बातें सुनना पड़ रही थी। मैं तो पूरी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्दी सामान पैक करके वहां से निकल गई, क्योंकि उनके ताने से मैं परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफी घबरा गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब मैं उठकर डाइनिंग टेबल रूम का लाइट ऑन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। नकाब पहने 2 आदमी मेरे घर के अंदर थे। जरूर कोई चोर होंगे, तभी अपना चेहरा ढक कर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर इससे पहले ही वो मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेज से धड़कने लगा। मुझे अकेली विधवा औरत को 2 मर्दों ने घेर लिया था। मैं करती तो क्या करती। वह लोग चुपचाप थोड़ी देर खड़े रहे तो मैं शांत हो गई। जब उन दोनों ने अपना नकाब हटाया तो मेरे सिर के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एक तो वही जिम वाला आदमी था और दूसरा ट्रेन वाला। इन दोनों ने पहले से ही जरूर कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। आखिर मुझे अकेली औरत से ये लोग क्या चाहते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने कहा, हम आपके पति संदीप के दोस्त हैं। हम सब साथ आर्मी में काम करते थे। हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, पर आप घबराइए मत, हम आपका कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे।
उन लोगों ने मुझे चाय बनाने को कहा। अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई थी और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब रात के 2 बज रहे थे। आखिर ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, मैं ये सोच कर कांप रही थी। चोरों की तरह रात के 2 बजे ये लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, जबकि वह जानते हैं कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे बुरी तरीके से कांप रही थी। तभी मैंने नल खोला और अपने ऊपर पानी डालने लगी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुंची। पानी से साड़ी गीली हो गई थी। जब मैं उन दोनों को चाय दिया तो वह लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और मेरे गीले बदन को ताड़ रहे थे। घबराहट से मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, और बदलती भी कैसे, वो लोग तो मेरे बेडरूम में बैठ गए हुए थे। दोनों ने चाय ले ली और कहा कि आपके पति ने मरने से पहले हमसे वचन लिया था कि हम आपका ध्यान रखें। वह आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके बारे में हमें बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा है कि हम दोनों आपसे शादी कर लें। ये सुनकर तो मेरा सर चकरा गया। ये क्या कह रहे हैं? 2 लोगों से शादी कर लूं? मेरे पति की ये आखिरी इच्छा है। ऐसी इच्छा उन्होंने कैसे पाल ली? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये लोग मेरे पति के दोस्त हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इन लोगों का जिक्र नहीं किया। मैं बैठ गई और उनसे कहा कि 2 लोगों से शादी कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, यही हम सोच रहे थे, इसलिए 1 साल तक हम आपके पास नहीं आए। लेकिन आपके पति की आखिरी इच्छा हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी वजह से हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों आपसे शादी कर लेंगे, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं, लेकिन मेरे पति के मरते हुए ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। भैया भाभी भी नहीं चाहते कि मैं उनके पास जाऊं। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना जाने क्यों मैं उन दोनों पर भरोसा कर लिया और उनसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं बिल्कुल ही घबरा गई और रात भर मेरी चीख निकलती रही। मुझे पता नहीं था कि वे लोग मेरे साथ। जब मैं सुबह उठी तो वह दोनों जा चुके थे, और फिर मैं अपने आप को कोसने लगी। मुझे तो यकीन हो चुका था कि ये लोग जाली हैं और बस मौके का फायदा उठाने आए थे। तभी मेरी नजर घर की अलमारी पर पड़ी, जो कि खाली हुई थी। उसे देखते ही मैं बहुत घबरा गई, और जैसे ही मैं अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था और उसके अंदर पड़े मेरे सारे सोने के जेवरात गायब थे, जो कि मेरे पति ने इन 8 वर्षों में मुझे बना कर दिए था। जब मेरी सास ने मुझे घर से निकाला था तब वह जेवरात वापस मांग रही थी, पर मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे पति ने वह गहने दिए थे। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाऊंगी? इससे मेरी ही बदनामी होती। वह दोनों मुझे लूट कर चले गए थे। तभी मेरे पास एक फोन आया। कॉलर आईडी में उसका नाम देखकर मैं घबरा गई। कांपते हुए हाथों से जब मैंने फोन उठाया तो उधर मेरी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कह रही थी कि तेरे कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई होगी और मेरे कलेजों को भी। मैं समझ चुकी थी कि उन दोनों आदमी को मेरे पास भी उन्होंने ही भेजा था, ताकि वह गहना का चुरा सकें। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक गंदा मजाक हुआ है। लेकिन करीब 6 महीने बाद किसी ने मेरा दरवाजे का बेल बजाई। जब मैं दरवाजा खोली तो मेरे देवर सामने खड़ा था। मैंने कहा, आप मुझसे आप क्या लेना आए हो? तभी उन्होंने मेरे सारे गहने मुझे वापस कर दिए। मेरे देवर अंदर आया और कहा, भाभी, मेरी माँ और मेरी बीवी ने आपके गहने लेने के लिए ये सारा गंदा खेल रचा था, लेकिन बूढ़े कर्म के नतीजा बुरा ही होता है। गहना चोरी के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और मर गई। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अभी भी तलाक हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपसे शादी कर लूं, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता था, पर आप मेरे भैया की पत्नी थी, इसलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया और घर का मर्यादा कभी पार नहीं की। पर अब जब आप भी अकेले हैं और मैं भी अकेला हूँ, हम शादी करके एक दुनिया बसाते हैं। मैंने अपने देवर की बात मान ली और उससे शादी कर ली, क्योंकि ये एक वही है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया
اور اس کے ساتھ پیار سے میں نے ساری زندگی بتائی۔ تو دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ کا ضرور بتائیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔